Hello students, welcome to the lecture series of AI. So we start with the definitions of AI. What is AI? Okay, artificial intelligence क्या है? तो एक सिंपल डेफिनेशंस ये हम बोल सकते हैं कि how humans think, how human perform various activities. So to make machines do the same thing is AI. By the way, यहाँ बहुत सारे definitions हैं, various approaches AI के जो है उसके मुताबिक हम definitions देखेंगे. The very first definition is regarding thinking humanly approach. So there are two definitions with respect to thinking humanly approach. सबसे पहला है the exciting new effort to make computers think, machines with minds in full and literal sense, given by Hogeland. Then second definition with respect to thinking humanly approach, the automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning, etc. तो ये डेफिनेशन से हमको क्या समझ में आता है? थिंकिंग ह्यूमनली का मतलब ये है कि वी कैन एज्यूम मशीन्स टू हैव माइंड्स जस्ट लाइक ह्यूमंस हैव. मशीन्स दे मे थिंक, दे मे मेक डिसीजंस, दे मस्ट मेक डिसीजंस. यानी जैसे इंसान जो है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, दे मेक डिसीजंस, they think, they solve problem, and of course they learn new things. So we can make machines with that, in that sense ये definition है. Then second जो approach है वो है thinking rationally approach. तो इसके भी दो definitions यहाँ पे दिए हुए. The first one, the study of computations that make it possible to perceive, reason and act. Then the second definition given by Charnak and McDermott, the study of mental faculties through the use of कंप्यूटेशनल मॉडल्स. तो ये डेफिनेशन में क्या है, हम देखेंगे हाउ ह्यूमंस का जो दिमाग काम, जो वह दिमाग मतलब जैसे हम रीज़न करते, परसीव करते, रीज़न करते, एक्ट करते हैं, तो कैन वी मेक दैट इनटू कंप्यूटर. ओके, सो जो इंसान की सोच है, ओके, इंसान का दिमाग जो काम करता है, क्या उसका हम कुछ कंप्यूटेशनल मॉडल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो वाकई हम लोग इसको मशीन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस वाज द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज थिंकिंग रैशनली. डेफिनेशन इज एक्टिंग ह्यूमनली अप्रोच. तो इसमें एज वी कैन सी द टू डेफिनेशंस गिवन हियर. द फर्स्ट वन, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स that perform functions that require intelligence when performed by the people. Then second, the study of how to make computers do things at which at the moment people are doing it better. ठीक है ना, यानी वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, वही चीज़ कंप्यूटर करे. ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलता है कि द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स, यानी हम ऐसे सिस्टम्स, ऐसे मशीन्स बनाएं जिस काम के लिए जिसको ह्यूमंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो why don't we make machines which can do much better than the humans can do? Okay, so that is acting humanly approach. Then finally, acting rationally approach, there are two definitions. That is, computational intelligence is the study of design of intelligent agents. Then AI is the next definition. AI is concerned with intelligent behaviors in artifacts. So ये जो the last approach जो है acting rationally में क्या है, we have intelligent agents, or we can say rational agents. So we create some agents, okay, and those agents, they always take the best possible decisions. Okay, so we must make the machines which are capable of making the best possible decisions. Okay, so now we will see the acting humanly approach in detail. ये acting humanly approach is also called as Turing test approach. What is Turing test? तो एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट डिज़ाइन किया था. ये टेस्ट जो है, हम मशीन का वेदर मशीन इज़ हैविंग इंटेलिजेंस और नॉट, ये टेस्ट करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट बनाया गया था. लाइक इन दिस एग्जांपल हम देखते हैं ए बी सी. सो ये ए इज़ द इंटरोगेटर, ये जो है इंटरोगेटर है, यानी ये किसी सवाल पूछ रहा है. ओके, ये रिटर्न इसको दिया, इसने इसे भी दिया. ओके, और इसको रिप्लाई मिल रहा है. तो ये सी ये पता नहीं कर सकता है कि ये जो रिप्लाई ए से आया वो ह्यूमन से आया या मशीन से आया, और बी से रिप्लाई मशीन से आया या ह्यूमन से आया. तो कोई ऐसा मशीन जो ऐसा रिप्लाई दे दे जो ह्यूमंस देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया, उसको इसके पास इंटेलिजेंस है. सो दिस ट्यूरिंग टेस्ट वाज डिजाइन टू चेक द इंटेलिजेंस ऑफ द मशीन. अब क्या क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए
एक पर्टिकुलर मशीन को ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए दिस आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट, जो 6 थिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो अगर सपोज़ ये पर्सन, ये सी जो है, ये अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है तो ये मशीन को वो लैंग्वेज पर्टिकुलर आनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट मशीन मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है, रशियन तो रशियन में, जो भी लैंग्वेज उसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ये जो आंसर दे रहा है, जो भी सी क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है और ए आंसर दे रहा है, तो ए के पास वो नॉलेज है और उसे किसी न किसी तरह से स्टोर किया गया है उसके सिस्टम में। ओके, देन थर्ड इज ऑटोमेटेड रीजनिंग। ओके, नाउ ऑटोमेटेड रीजनिंग में क्या है, वी मस्ट बी एबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो बी एबल टू क्वेश्चंस टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके ना, यानी उसको उसके पास इंफॉर्मेशन तो स्टोर किया हुआ है, मगर कौन सा आंसर है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, और नए नए कंक्लूजन्स भी उसे लेने आना चाहिए। देन मशीन लर्निंग क्या है कि इट मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो यानी अगर कोई नई सिचुएशन आ गई, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कैसे जैसे बड़ा होता रहता है, नई नई चीज़ें सीखते रहता है, तो इसके पास भी कैपेबिलिटी होना चाहिए। कोई भी नई चीज़ आई तो उसे डिटेक्ट करके उसे मतलब अपने से सिस्टम में सेव कर लेना चाहिए। Then apart from this 4, we also require number 5 and number 6, that is computer vision and robotics. तो computer vision की है कि to perceive the objects, okay, उसके बाद maybe it is having some cameras or any other things by which it can perceive, यानी it can take inputs from the environment. Then robotics, maybe like we want to move some objects, okay, manipulate objects या move the objects, तो उसके लिए रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, दिस इज द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। द थर्ड अप्रोच इज थिंकिंग रैशनली अप्रोच, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ थॉट अप्रोच। तो ये अप्रोच में क्या, वी यूज़ अ लॉजिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ओके, वी यूज़ द लॉज, द लॉजिकल कंसेप्ट ये केस में। जैसे एरिस्टोटल की थ्योरी जो सिलोगिज्म का था, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट थिंकिंग राइट अप्रोच, ठीक है ना। व्हाट वी, यानी हमारे पास कुछ प्रेमाइसिस रहेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो उससे हम कंक्लूजन कैसे अप्लाई करेंगे, दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। जैसे हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस हैं, 1 and 2। प्रोपोजिशन 1 सेज सोक्रेट्स इज अ मैन एंड सेकेंड सेज ऑल मैन्स आर मॉर्टल। सो वी कैन कंक्लूड सोक्रेट्स इज मॉर्टल। ओके, सो वी कैन कंबाइन वेरियस प्रेपोजिशंस और वेरियस प्रेमाइसिस टू कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो ये अप्रोच था थिंकिंग रैशनली अप्रोच का। इसमें लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक जॉर्ज बुले का लॉजिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा जिसको बोलते हैं। देयर आर वेरियस लॉज, एंडिंग है, ऑरिंग है। ओके, सो वी हैव अ स्टेटमेंट्स, वी अप्लाई द लॉजिक एंड वी कम टू द कंक्लूजन। ये भी एक अप्रोच हो सकता है एआई का, मगर इसके अंदर 2 ऑब्स्टेकल्स हैं ना। 2 ऑब्स्टेकल्स क्या है, हम हर चीज़ को है लॉजिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हर स्टेटमेंट को, बिकॉज इन रियल लाइफ हम लोग जो है ये सब चीज़ को लॉजिक में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक थियरी में है और एक उसको प्रैक्टिस में है, ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये जो अप्रोच है, इसके ये 2 ऑब्स्टेकल हैं। द फोर्थ अप्रोच इज एक्टिंग रैशनली, जिसको हम बोलेंगे रैशनल एजेंट अप्रोच। तो जैसे आपको बताया, रैशनल एजेंट कौन है, इट इज़ अ रैशनल एजेंट इज़ द वन विच ऑलवेज टेक्स द बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस, यानी जो हमको सबसे बेस्ट आउटकम है वही देगा। ऐसा है कि 2-3 एक साथ आउटकम है, तो जो इसमें सबसे अच्छा रहेगा वो हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो दिस कॉल्ड इज अ रैशनल एजेंट। नाउ रैशनल एजेंट में क्या, वी डिज़ाइन अ एजेंट, वो एजेंट को हम डिज़ाइन करेंगे और वो परसीव करेगा, एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें परसीव करेगा और उसके मुताबिक डिसीजंस लेगा, ठीक है ना। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे में क्या है, एक जनरल, ये एक इन जनरल अप्रोच है, हम किसी भी फील्ड में इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड देन इट इज़ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू साइंटिफिक डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू द अदर पर्टिकुलर अप्रोचेज। इसमें साइंटिफिक हमारे पास साइंटिफिक रीज़न होगा कि भाई देखो ये है तो इसके मुताबिक इसको ये काम करना है, ये है तो इसके मुताबिक इसको ये काम करना है। सो वी कैन मेक अ पर्टिकुलर प्रोग्राम which can behave, which can actually define, which can come to this particular definition of acting rationally.
नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें सबसे पहला टॉपिक है फिलोसफी. फ्रॉम द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द फाउंडेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ वी वांट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कैन फॉर्मल रूल्स बी यूज्ड टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स? यानी अगर हमारे पास कुछ रूल्स होंगे तो क्या उससे हम कोई वैलिड कंक्लूजन्स बना सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैकेनिकल मशीन्स बनाए विच कुड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विच ऑफ कोर्स ह्यूमन कुड हैव सॉल्व्ड इट. ओके, जैसे लियोनार्डो डी विंसी ने एक मशीन डिज़ाइन किया था. ऑफ कोर्स वो चला तो नहीं, मैकेनिकल उसने बनाया था. ओके, कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, बट इट डिडंट वर्क. इट वाज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल. देन ब्लेस पैस्कल ने ही डिज़ाइन अ मशीन कॉल्ड एज पैस्कलाइन, and this machine was able to do some arithmetic operation. And even Leibniz, he also designed a machine which was able to do more calculations. So that is how we come to a conclusion. We have some rules. एडिशन के रूल्स है तो उससे हम कुछ एडिशन कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है तो इससे हमको आउटपुट मिलता है. तो वी कैन डू सम मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. देन सेकेंड क्वेश्चन कम्स, हाउ डज द माइंड अराइज फ्रॉम अ फिजिकल ब्रेन? ओके, हमारे जो दिमाग में जो बीच सोच आती है, जो चीज़ें आती है, वो कहाँ से आती है? वी थिंक, एंड ऑल्सो इवन द एनिमल्स, दे ऑल्सो हैव माइंड. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? हाउ डू दिस थिंग्स कम इन टू आवर माइंड? इसके लिए मतलब देर आर वेरियस थियरीज ऑफ ड्यूअलिज्म है, देन रैशनलिज्म है, ठीक है, विच ऑफकोर्स एक्सप्लेन्स लाइक थिंग्स लाइक हाउ दिस माइंड अराइजेस फ्रॉम द फिजिकल ब्रेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम? हमारे दिमाग में हम जो नॉलेज हम गेन करते हैं कहाँ से आती है? तो इसके लिए भी काफ़ी थियरीज़ है, लाइक व्हाट वी ऑब्जर्व, ओके, लाइक व्हाट वी लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स. इनिशियली वी आर टोटली ब्लैंक, देन एज वी सी द सराउंडिंग वी लर्न many of the things. So this is there are various theories supporting this, where the knowledge comes from. Then the final question, how does knowledge lead to action? We have a knowledge, तो वो नॉलेज से हम पर्टिकुलर एक्शन कैसे लेते हैं? तो इसके लिए भी काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया. तो इसमें कि वी हैव अ गोल, इसमें से एक रिसर्च ये था कि हमारे पास एक गोल होता है कि हमको ये काम अचीव करना है. ओके, हमारे पास ये नॉलेज है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना नॉलेज इस्तेमाल करके वो एक्शन लेते हैं ताकि हम गोल तक पहुँच जाए. तो यही जो था, ये आई थिंक दिस वॉज डन बाय एरिस्टोटल एंड दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय न्यूवेल एंड साइमन फॉर देयर GPS प्रोग्राम, जो इसके पहले हमने स्टडी किया. सो दिस इज द फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ए. नेक्स्ट कम्स मैथमेटिक्स in the case of foundations of AI. So these are some of the questions which we want to answer. The first is, what are the formal rules to draw valid conclusions? It means if we have some statements, some prepositions, so what to draw the conclusion from those? If you want to draw the conclusions from those prepositions, how do we draw the conclusions? हमारे पास कुछ prepositions, कुछ statements हैं, तो उसको conclude कैसे करेंगे? तो क्या true है, क्या false है? Then we have, for this purpose, we have the logic theory which was developed by George Boole. तो ये लॉजिक थियरी हम यूज़ करते हैं, इसके लॉजिक के रूल्स अप्लाई करते हैं. लाइक इफ़ यू हैव अ स्टेटमेंट ए, अ स्टेटमेंट बी, देन ए एंड बी, it might be true or false, A or B, it might be true or false. Then we use De Morgan's law, and various laws are used to draw the valid conclusions. We have the preposition theory, the first order logic, and second order, and so on. Then the second part which we want to answer is, what can be computed? Like of course for logic also हमको we need some algorithms, हमें algorithms लगेंगे compute करने के लिए. Then we might be dealing with some complex problem which may be computed, which may not be computed. तो वो भी देखना पड़ेगा हमें. Some are difficult problems and some are may not that much difficult, which could be computed. Then finally, what do we reason with uncertain information? In many cases, in real time situations, we don't have the complete information. हमारे पास information uncertain है. For example, अगर हम कोई coin है, उसको अगर toss करते हैं, तो we may get head, we may get tail. तो 50% chances है कि what we may get head or we may get a tail. तो वैसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, तो उसको डील करने के लिए वी यूज़ द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी थियरी यूज़ कर सकते हैं टू कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन्स. सो दिस इज रिगार्डिंग द मैथमेटिकल पार्ट. नेक्स्ट वी कंसिडर इकोनॉमिक्स टू बी द फाउंडेशंस ऑफ AI. So to study the foundations of AI, so first question is, how should we make decisions so as to maximize the payoff? Now see, economics is not like regarding money.
Here economic, the decisions taken in are in such a way that we get the required output. Okay, we get the preferred outcomes. ये है इकोनॉमिक्स के बारे में. तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि हमको मैक्सिमम हमें आउटपुट अच्छा, व्हाट हम क्या डिज़ायर करते हैं वो हमें आउटपुट मिल जाए. सो इन दैट केस वेरियस लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग होता है. ओके, like in our lower class we might have learned this theory. if we have to maximize the output, हमारे पास एक प्रोडक्ट P1 है, वो टाइम T1 में कंप्लीट होता है और इसमें हमको प्रॉफिट जो है दिस मच PR1 इज़ द प्रॉफिट. देन वी हैव प्रोडक्ट P2, वो इतने टाइम बनता है, इसका प्रॉफिट इतना हमारे पास है. तो हाउ टू मैक्सिमाइज द आउटपुट सो दैट वी कैन यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स. देन सेकेंड क्वेश्चन जो है, हाउ शुड वी डू व्हेन अदर्स में नॉट गो अलॉन्ग. ठीक है, ये हम कैसे हम क्या डिसीजन लेंगे, व्हाट शुड वी डू दिस, हाउ शुड वी डू दिस व्हेन अदर्स में नॉट गो अलॉन्ग. तो इसके लिए डिसीजन थियरी जो है, okay, which is used in game theory. जैसे game when a person is like in case of game theory, we have a adversary, we are playing and an opponent is playing. So how should we go along, हम कैसे खेलेंगे तब ताकि हमारा यूटिलिटी या हमारा जो पॉइंट्स ज़्यादा हो जाए. देन फाइनली, हाउ शुड वी डू दिस व्हेन द पे ऑफ मे बी फार इन द फ्यूचर. इसके लिए थियरी, ऑपरेशंस रिसर्च है, देन मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस है, दे आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस. तो हम क्या करेंगे ताकि अभी हमको पे ऑफ अभी नहीं, बाद में मिलने वाला है. तो हाउ टू गो अबाउट द प्रॉपर डिसीजंस, तो देख हमको आगे तो ताकि हमको आगे जो है पे ऑफ अच्छा मिल जाए. फॉर दिस पर्पस वी हैव द थियरीज लाइक ऑपरेशंस रिसर्च एज वेल एज मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस. So next comes neuroscience. So neuroscience is the study of nervous system and of course particularly the brain. So ये तो सबको पता है कि जितने भी थॉट्स हमारे जो आते हैं इट कम्स इनसाइड आवर ब्रेन. क्योंकि हम देखते हैं कि किसी को कोई सीरियस इंजरी हो जाती है सर पे, तो वो बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, उसकी याददाश्त चली जाती है. ओके, और ये भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस पे बताते हैं कि देर आर सम पार्ट्स इन आवर ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम एक्टिविटीज़. लाइक किसी को ये पर्टिकुलर ब्रेन में डैमेज हो गया तो उसकी उसको कम सुनाई दे रहा है या उसको देखने में तकलीफ हो रही है. सो देर आर सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स विच आर कंसर्न फॉर सम एक्शंस. सो ये जो हम देख रहे डायग्राम, दिस डायग्राम इज एक्चुअली अ डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. सो इट इज सेड दैट द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ large number of neurons, and this is the structure of a neuron. So neuron consists of a nucleus, and this is a single neuron which is shown to us. वो आके जाके branches बन के dendrite बनता है, और axon जो है they stretch up to long distances 10 सेंटीमीटर से एक मीटर तक भी जाता है आगे जाके. Then neurons, they are connected. There are millions of neurons which are connected through synapses. ये synapses के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होते हैं. So neurons, they are responsible for generating the senses, passing the information. तो अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं. ओके, जैसे ये हम बोलते हैं दिस MRI टेक्निक है, EEG टेक्निक है. अभी हम तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को हम देख सकते हैं. एंड ये भी देखा गया इंडिविजुअल न्यूरॉन्स को, उसको सिमुलेट किया गया इलेक्ट्रिकली, केमिकली, ऑप्टिकली, और उसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या हो रहा है वो देखा गया. मगर इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ है, बट पीपल आर वर्किंग ऑन दिस लाइक हाउ न्यूरॉन्स वर्क, बिकॉज न्यूरॉन्स दे आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन सेल्स. तो वो कैसे वर्क करता है अगर हमको पता चल जाएगा, तो हम वैसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाकर हम जैसे ब्रेन वर्क करता है वैसे हम कुछ वैसे वर्क कर सकते हैं. नाउ इफ़ वी कंपेयर द न्यूरॉन्स, the human brain with the supercomputers and personal computers, so these are the computational units. Like a storage unit hai, we have 10^11 neurons, and supercomputers, they have 10^14 bits of RAM. Then computational units, if we compare, supercomputers have 10^4 CPUs, 10^12 transistors, and human brains, they have 10^11 neurons. And these are the various other parameters which are comparable. So you can see human brain is comparable to the supercomputer. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी. तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन आंसर देना है, हाउ डू ह्यूमंस एंड एनिमल्स थिंक एंड एक्ट. ओके, कैसे सोचते हैं, हाउ द थिंग्स कम टू ह्यूमंस माइंड एंड एनिमल्स
वो कैसे सोचते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं. So there are various researches done with respect to psychology on these things. So there is a branch called as cognitive psychology. वो क्या व्यू करती है कि ब्रेन इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस. दिमाग जो है एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला, जैसे उसके पास कुछ नॉलेज है. ओके, सो वी हैव ब्रेन, वी कैन कंसिडर एज ए नॉलेज बेस्ड एजेंट. ठीक है, तो उसमें थॉट्स कैसे आते हैं, तो इसके कुछ इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. पहला क्या है कि जो भी चीज़ आती है दिमाग में वो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में, और वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हमें कुछ मैनिपुलेट करके किसी प्रोसेस से उसको एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ये रिप्रेजेंटेशन को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट द नॉलेज बेस्ड एजेंट थियरी सेज. इसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल थियरीज हैं, ओके, विच एक्सप्लेन्स द दिस प्रोसेस. देन देर आर सम रिसर्च पेपर्स which shows how computer models could be used to address the psychology of memory, language and logical thinking. तो अगर हम ये मॉडल समझ में आ जाएगा हमें, अगर कंप्यूटर कैसे मतलब कैसे मेमोरी कैसा होता है, लैंग्वेज क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है, तो वी कुड मेक कंप्यूटर मॉडल्स फॉर दैट. लैंग्वेज प्रोसेस करना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग में हमें कोई कंक्लूजन करना है तो उसे कैसे कंक्लूड करेंगे. मेमोरी में क्या है कि हाउ टू process those thoughts into some type of a element so that it could be stored. So this is concerned with the psychology part. So next comes computer engineering. See, for the success of artificial intelligence हमको 2 चीज़ की ज़रूरत होगी. एक तो इंटेलिजेंस, दूसरा है आर्टिफैक्ट. आर्टिफैक्ट मतलब सम ऑब्जेक्ट, हार्डवेयर. सो कंप्यूटर कैन बी द आर्टिफैक्ट. नाउ व्हाट कंप्यूटर वी हैव टुडे, वो शुरुआत में आज से कई साल पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये काम शुरू हुआ डिजिटल कंप्यूटर पर. एंड दोज कंप्यूटर्स दे वेर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी स्लो एंड वेरी एनॉर्मस साइज. सो द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर वॉज इलेक्ट्रोमैकेनिकल. इसका नाम था हेथ रॉबिन्सन, विच वॉज बिल्ड बाय इन 1940 बाय एलन ट्यूरिंग. ये इसका एक पर्पज़ था कि डिसाइफरिंग जर्मन मैसेजेस. तो जर्मन जो वर्ल्ड वॉर में बहुत आगे बढ़ रहा था, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के, उसे ऑफकोर्स डिफीट करने के लिए दे नीडेड टू डिसाइफर मीन्स टू अपना कोड भेजते थे, तो उसे वो कोड को फाइंड करने के लिए वी नीड टू डिसाइफर दैट मैसेजेस, तो उसके लिए यूज़ करते थे. देन फर्स्ट ऑपरेशनल प्रोग्रामर कंप्यूटर वॉज Z3, द इन्वेंशन ऑफ Konrad Zuse. Okay. Then the first high-level programming language was Frankencool, and first electronic computer was the ABC. इसके अलावा एक ENIAC भी था, एक कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया. सो तब से लेके आज तक जितने भी PCs बन रहे हैं, उनका एक ही मतलब मेन एम था कि साइज बिकेम मच स्मॉलर, स्पीड बिकेम मच फास्टर, एंड ऑफ कोर्स द साइज ऑल्सो ड्रास्टिकली डिक्रीज. लाइक वी हैव मोबाइल फोन इज एज गुड एज अ कंप्यूटर. सो उसके पहले, ये कंप्यूटर के पहले भी लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे कि कुछ मैकेनिकल डिवाइस बन जाए जिससे हम अपना काम आसानी से कर देवे. बाय द वे, एआई को बहुत बड़ा फ़ायदा कंप्यूटर साइंस की फील्ड से मिला, बिकॉज कंप्यूटर साइंस फील्ड सप्लाइड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बहुत सारे टूल्स जो मॉडर्न प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं इसके लिए. एंड ऑफ कोर्स एआई ने जितना कंप्यूटर साइंस ने एआई को दिया, एआई ने उससे ज़्यादा बल्कि कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर डोनेट की, मतलब अपना दिया है. तो जैसे टाइम शेयरिंग, तो टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट एआई की वजह से मिला है हमें. देन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर्स, देन पर्सनल कंप्यूटर्स विद विंडोज़ एंड माउस, एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एनवायरनमेंट्स, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट. तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो थी, दिस वाज गिवन बाय एआई टू द कंप्यूटर साइंस फील्ड. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में क्यों था, क्योंकि पहले कंप्यूटर्स बहुत दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सो वी नीड टू शेयर द रिसोर्सेज. तो उसके लिए टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट को इन्वेंट किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की. सो दिस वॉज रिगार्डिंग द कंप्यूटर इंजीनियरिंग पार्ट. नाउ नेक्स्ट कम्स कंट्रोल थियरी एंड साइबरनेटिक्स. से अराउंड द ईयर 250 BC, a person, he built the first self-controlling machine which could regulate the flow of water.
वो अपने आप मतलब अपना जो फ्लो है रेगुलेट करता था, एक पर्टिकुलर स्पीड से पानी को कंट्रोल करता था। तो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू। अब तक ऐसा लगता था कि भाई ह्यूमन बींग्स जो है वो मशीन को कंट्रोल करते हैं, अब यहाँ पर ये मशीन खुद अपनी आप की स्पीड को कंट्रोल करता है। दिस वेरी समथिंग न्यू। इसके बाद नॉर्बर्ट वीनर ने ही गेव द कंट्रोल थियरी। तो कंट्रोल थियरी में क्या है, हाउ हाउ द फीडबैक इज यूटिलाइज सो एज टू गेट द पर्टिकुलर आउटपुट। एंड उसने ये भी देखा, बहुत सारे सिस्टम स्टडी किए, जैसे बायोलॉजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम्स को स्टडी किया, और ये बताया कि हाउ हाउ how they have connection to cognition means the thought process, how they are connected to the thought process. Then there were many research apart from this. Then one of the person he elaborated that intelligence could be created by use of homeostatic devices containing appropriate feedback loops. यानी हम सिस्टम्स को और अच्छा बना सकते हैं, आउटपुट अच्छा ला सकते हैं अगर उसमें सही फीडबैक मैकेनिज्म यूज़ किया गया। फिर मॉडर्न कंट्रोल थियरी जो है वो ये बताती कि अगर हम प्रॉपर फीडबैक, अगर हम गोल बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम ऐसा फीडबैक मतलब ऐसा फीडबैक डिज़ाइन करेंगे दैट इट विल मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा वो। सो दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू एआई, because even in case of AI we want to maximize the output and to get the best possible decision. मगर ये कंट्रोल थियरी it was just related to calculus and matrix algebra, और उसका जो स्कोप था बहुत कम था, और AI का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है। it goes to speech recognition and finding solutions in many complex situations. So we cannot have the same control theory and AI are not the same field, they are totally different, but concepts of control theory are used in AI. सो नेक्स्ट कम्स द लिंग्विस्टिक्स। स्किनर जो है उसने स्किनर एक ऑथर थे, उन्होंने एक पब्लिश किया वर्बल बिहेवियर, विच वाज एक्चुअली बिहेवियर अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। तो इसके मुताबिक क्या है कि जो भी पर्सन लैंग्वेज लर्न करता है तो वो उसके बिहेवियर पैटर्न, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट उसके मुताबिक लर्न करता है, नो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट। सो दूसरे ऑथर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसा होगा कि सिर्फ वो अपने आसपास ही देखकर वो लर्न करेगा, बल्कि उसका दिमाग भी इसमें चलाएगा, ही वुड बी एबल टू क्रिएट सम न्यू थिंग्स, न्यू वर्ड्स आउट ऑफ व्हाट ही हैज़ लर्न। तो खैर ये तो इसका हिस्ट्री है। नाउ व्हाट मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड एआई दे नाउ वी आर कंसर्न विद समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सो दैट द सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज। खाली वोकेबुलरी डाल देंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा, खाली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। सो वी नीड दैट टाइप ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। खाली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने से बहुत मतलब मीनिंग सेम भी नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।